Hello, welcome back. So this is our next topic, semaphores. In the last lecture, we have understood what a critical section is and what critical section problem is. Okay. So what is a semaphore? Semaphore is nothing but a software solution for the critical section problem. So we can define semaphore as a non-negative integer variable. So semaphore is a variable which will always hold a non-negative integer value. Why it is used? It is used for synchronization of task. Synchronization का मतलब क्या है? If we have a critical section where we have a common variable v and process p wish to enter into this critical section and process q is also interested in enter into this critical section, p will request the critical section and p is executing the critical section. If at the same time q is also requesting, its request will be denied. When p will left the critical section, then only q's request will be approved and q will enter in the critical section. This whole segment is known as synchronization, which is done by implementing semaphores. So now how we can implement the semaphores? Semaphores can be implemented using two functions, wait operations and signal operation. What are these operations? We will understand in the next slide. If we have a critical section, then we implement semaphore by a entry point and a exit point. This entry section is implemented by a wait operation and exit section is implemented by signal operation. At entry point, wait function will execute. अगर कोई process P आता है, it will execute this wait function, enter into critical section and perform its task. If at the same time next process Q wish to enter into the critical section, वो एंट्री सेक्शन के पास जाएगा, फिर से वेट फंक्शन ऑपरेट करेगा, बट वेट उसको एंटर करने नहीं देगा बिकॉज पी इज़ ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग. ठीक है. सिमिलरली इफ पी विश टू एग्जिट द क्रिटिकल सेक्शन, सिग्नल फंक्शन एट एग्जिट पॉइंट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड दिस पी विल बी एग्जिटेड फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन. ये सब चीज़ें कैसे होती हैं हम समझेंगे. पहले हम समझते हैं वेट और सिग्नल फंक्शंस क्या होते हैं. सो वेट फंक्शन इज़ अ semaphore function where s is a semaphore. S is what? Semaphore value which is represented by s as any non-negative integer value. In our case we are using binary semaphore, so we will take s is equals to 1 in the starting point. ठीक है. Function will be executed in this way where we use a while loop. If s value is less than, semaphore की value अगर is less than equals to 0, then it is true. In this case we have to execute the statement, but हमारे पास यहाँ while का कोई statement नहीं है, इसलिए it will enter into a loop. ये फिर से चेक करेगा next value के लिए. ठीक है. next value चेक करेगा. if it is also true then it will continue in the loop. ये बाहर लूप से कब निकलेगा? जब ये वैल्यू फॉल्स होगी. सो जब s इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू 0, देन ये वैल्यू हमारी फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे and then we will execute s minus minus. That means we will decrement this value of s. So this is our wait function which is executed in entry portion. Okay. Similarly we have function signal function where again s is a semaphore value. ठीक है. इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है. हमारे पास कोई लेंदी कोड नहीं है. इस कोड में हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं? वी ड्यूरिंग द एग्जिट पोर्शन वी री इंक्रीमेंट द सीमाफोर वैल्यू. जिस सीमाफोर वैल्यू को हमने डिक्रीमेंट किया था इन द एंट्री पोर्शन, उसी को हम लोग री इंक्रीमेंट कर देते हैं इन द एग्जिट पोर्शन. तो सिग्नल फंक्शन हम कहाँ यूज़ करते हैं? एट द एग्जिट पोर्शन. इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हम ओवरऑल देखें, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन वेयर इनिशियल वैल्यू ऑफ एस इज़ 1. तो इनिशियली एस की वैल्यू क्या हुई हमारी? 1. हम वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. हम चेक करेंगे वाइल एस इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, नो, सो फॉल्स. तो हम बाहर आ जाते हैं लूप से और इस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करने लगते हैं. जब हम क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होते हैं तो वेट फंक्शन क्या करता है? इट डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ 1 सीमाफोर. सो अभी इनिशियली वैल्यू 1 थी, वेट ऑपरेशन ने पी को एंटर करवाया और साथ ही साथ वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया बाय 0. ठीक है. पी विल ऑपरेट. अगर इसी समय पे हम देखें कोई नया फंक्शन क्यू आएगा और एंट्री पोर्शन को फिर से चलाएगा तो वेट ऑफ एस चलाएगा वेयर एस की इनिशियल अभी करंट वैल्यू इज़ 0, तो इट विल परफॉर्म वेट ऑफ 0. तो वो चेक करेगा ये 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू विल बी ट्रू. तो वाइल लूप क्या करेगा? उसको लूप में चला देगा, यानी उसका नेक्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा. तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी बट स्टिल क्यू क्रिटिकल सेक्शन में अंदर आ नहीं पाएगा.
ठीक है, तो इस तरह से हमने इंश्योर कर लिया कि एक बार में एक ही प्रोसेस आ रही है क्रिटिकल सेक्शन में. नाउ इफ दिस P प्रोसेस विश टू exit the critical section, it will execute signal function. Signal function किस तरह से ऑपरेट कर रहा था? It will increment the semaphore value. तो currently the value is 0, so it will increment the value by 1. So now the new value of semaphore will be 1, and hence the P will exit the critical section. Now अब Q चेक करेगा कि उसको आना है, तो अब हमारे पास S की वैल्यू क्या हो गई है? फिर से 1. So it will perform weight of S, that is weight of 1, and where while S is less than equals to 1, we have 1 is less than equals to 0, so value will be false and we will enter the process Q into the critical section. इस तरह से हमारा सीमाफोर का फंक्शन ऑपरेट करता है. नाउ ये तो हमारा है बाइनरी सीमाफोर. इसी के रेफरेंस से हम टाइप्स देख लेते हैं सीमाफोर के. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर एंड काउंटिंग सीमाफोर. जैसे कि भी हमने पूरा इम्प्लीमेंटेशन देखा बाइनरी सीमाफोर का, इसी को मैं एक्सप्लेन करूँ तो हम इस तरह से डिफरेंसेस देख सकते हैं. बाइनरी सीमाफोर कंसिस्ट ऑफ वैल्यू 0 एंड 1. तो बाइनरी का मतलब 2, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यू होंगी. हमारे पास S की वैल्यू या तो सिर्फ 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है. बट इन काउंटिंग सीमाफोर वी हैव ए इंटीजर वैल्यू. S की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कि कोई भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू. सीमाफोर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू. काउंटिंग इज नॉट ओनली 0 एंड 1, इट कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हमारे पास मोर देन 1 वैल्यूज़ होती हैं. हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं? व्हेन वी हैव मोर देन 1 स्लॉट्स. मोर देन 1 स्लॉट्स यानी हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं वो 2 ही ना होके, सिर्फ 2 कंडीशंस को ना सेटिस्फाई करके ज़्यादा नंबर्स में है. यानी जैसे हो सकता है कि हमारे पास उस रिसोर्सेज के एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस हों. तो जब एक ही इंस्टेंस होगा तो वो उसकी या तो वो अवेलेबल होगा तो 1 होगा, नॉट अवेलेबल होगा तो 0 होगा. तब उस केस में हम बाइनरी सीमाफोर्स यूज़ करेंगे. बट हमारे पास उस रिसोर्स के इंस्टेंसेस एक से ज़्यादा हैं, तो उस समय हमारे पास अगर एक इंस्टेंस अवेलेबल है या नहीं है तो दूसरा इंस्टेंस भी है जिसको हम चेक कर सकते हैं. इसलिए हम लोग एक से ज़्यादा स्लॉट्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, बाइनरी सीमाफोर्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू इम्प्लीमेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन. क्योंकि हमारे पास कंडीशन है या तो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा या फिर नहीं जाएगा, तो 2 ही केस है. उस समय हम काउंटिंग नहीं कर सकते, तो उस समय हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इम्प्लीमेंट करते समय बाइनरी सीमाफोर्स को यूज़ करते हैं. बट म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अलावा किसी स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है, देन वी कैन यूज़ नॉन काउंटिंग सीमाफोर्स इन नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशंस. ठीक है, सो काउंटिंग सीमाफोर्स प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, जैसे कि हमने समझ लिया मोर देन 1 स्लॉट्स के लिए यूज़ हो रहा है. एंड इट हैज़ इन बाइनरी सीमाफोर इट हैज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन mechanism, so it use only 2 values 0 and 1. So this was our semaphore. I hope lecture clear होगा. In the coming lectures we will discuss classical problems of concurrency and solve them using semaphores. Thank you.